Hello students, I am back with your new video of subject Social Science chapter 3 students. So half part of this chapter I have already completed. So right now we will talk about the second half part of this chapter students. Okay, so we won't waste our time. Let's begin. So the next topic is all about, so we will discuss and start this topic. People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, silk industry. In agriculture, they produced crops like wheat, barley, peas, sesame, mustard, etc. They used plugs to plug the land. They reared animals like cows, buffaloes, goats, and bullocks. They were engaged in internal as well as international trade. Historians believed that cotton cloth produced here used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. In addition of this, people living here were also involved in professions like pottery, metalwork, bead making, sculpture, and etc. So students, the people of Indus Valley civilization are very much engaged. मतलब उनके पास एक ही काम था, वो था एग्रीकल्चर करना और ट्रेड करना, और सिल्क इंडस्ट्री वहाँ उस टाइम में बहुत पॉपुलर था. और एग्रीकल्चर फील्ड में वो क्या क्रॉप्स ग्रो करते थे, वो वीट, बर्ले और पीस ग्रो करते थे, और सिसम और मस्टर्ड भी, राय. मस्टर्ड हम लोग अभी हिंदी में किसको बोलते हैं, राय को बोलते हैं स्टूडेंट्स. और ये लोग पूरे लैंड को डिग करते थे, प्लगम प्लग एक एक जगह पे रख रख के इसको ग्रो करवाते थे. वो लोग एनिमल्स को भी रियर्ड करते थे, मतलब घुमाने ले जाते थे हर जगह से. अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने साथ ही रखते थे, जैसे कि काउज, बफेलोज, गोट्स एंड बुलक्स, ये सारे उनके साथ ही होते थे. तो क्या एनिमल हस्बेंड्री भी होते थे, एंड दे वर वेरी मच डिवोटेड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो. दे वेयर इंगेज्ड इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड. वो लोग इंटरनल मतलब इंडिया में तो वो लोग कर ही रहे थे, वैसे साथ साथ वो लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी कर रहे थे. वो लोग इंटरनेशनली ट्रेडिंग भी ज़रूर कर रहे थे. ऐसा बोला जाता है कि जो हिस्टोरियंस थे वो बिलीव करते हैं कि उस टाइम में कॉटन क्लॉथ भी वो लोग प्रोड्यूस करते थे मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया और इजिप्ट भी जाते थे मेसोपोटामिया होके. सो एक्चुअली वी कैन से दैट द पीपल ऑफ दैट time, means in the Harappan civilization, they were very much involved in poetry, pottery, metal work, and bead making, sculptures, and etc etc. They were very much devoted on that part students. So we can say that easily. So now, social life of Harappan civilization. The main occupations of the people of Indus Valley were agriculture and livestock rearing. People of this time used to have wheat, barley, millet, peas, sesame, date plums, etc. in their diet. Due to pastoralism, cattle rearing, their diet consisted of milk and milk products also. A fishing hook has been found in the remnants of this civilization, so their food must have included fish also. We get information regarding attire of the people of that time on the basis of sculptures found from Indus Valley civilization. Men and women here wore two clothes. They wore clothes similar to dhoti on their waist, and in the upper part they wrapped a short cloth which. So students, इसमें क्या बोला जा रहा है, now we will discuss about the social life of the Harappan civilization. Socially life उनकी कैसी थी. So their main occupation, the people, जो लोग थे इंडस वैली के, उनकी main occupation क्या था, एग्रीकल्चर करना, राइट, और लाइव स्टॉक रेयरिंग करना, मतलब एनिमल हस्बेंड्री करना. तो वो लोग क्या क्या ग्रो करते थे, वीट, बर्ले, मिलेट, पीस, सिसम, डेट प्लाम्स, खजूर, ये सब चीज़ें वो लोग खाते थे. वो उनकी डाइट थी. डाइट मतलब वो लोग यही सब चीज़ें खाते थे. और एनिमल के थ्रू उन्हें क्या मिलता था, एनिमल डाइट में क्या मिलता था, मिल्क मिलता था, राइट.
ड्यू टू पेस्टोरलिज्म मतलब कैटल रियरिंग, जो एनिमल हस्बेंड्री मतलब काउ, गोट, बफेलोज ये सब उस टाइम वो लोग रखते थे, तो उनसे उनको क्या डाइट मिलती थी, मिल्क मिलता था। दे वर ऑल ड्रिंकिंग द मिल्क। देन देयर वॉज अ रिमेनेंस दैट अ फिशिंग हुक वॉज ऑल्सो फाउंड। मतलब जब जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो लोग जब हड़प्पन सिविलाइजेशन फाइंड आउट किए थे तब उनको वहाँ पे एक फिशिंग हुक भी मिला था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग फ़िश भी खाते थे स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग ये जानेंगे कि वो लोग उस टाइम में क्या पहनते थे। अटायर, ATTIRE, अटायर मीन्स होता है कपड़े, क्लोथ्स। वो लोग क्या क्लोथ्स पहनते थे। तो ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स है, स्कल्पचर्स मतलब दिस वन, दिस टाइप ऑफ स्कल्पचर्स वी कैन से दैट कि इसके थ्रू हमें पता चला है कि उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग क्या पहनते थे। तो मैन एंड वुमेन वेयर 2 क्लोथ्स, वो लोग 2 क्लोथ्स ही पहनते थे, जो एक धोती के जैसा था जो उनके वेस्ट में रहता था, वेस्ट मतलब कमर, ओके, और एक अपर पार्ट था जिसमें एक शॉर्ट क्लोथ होता था, रैप्ड किया हुआ मतलब लपेटा हुआ। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज। शॉर्ट क्लोथ which came down from the shoulder. They mainly used cotton clothes. They were also familiar with woolen clothes. As the needles made of metal and ivory have been found, we can assume that they wore stitched clothes, although most of the people wore unstitched clothes. People of this time wore ornaments like necklace, ring in finger, hand bracelets were worn by women as well as men. Women wore jewelry like bangles, earrings, waist belt, anklets, etc. These ornaments were made of gold, silver and precious stones. So students, इसमें हमें ये पता चला है कि जो उस टाइम में वो लोग जो पहनते थे ऊपर वाले पार्ट वो शोल्डर में रखते थे और वो कॉटन क्लोथ्स से बने हुए थे, और वुलन क्लोथ्स भी उस टाइम में बहुत लोग यूज़ करते थे, पहनते थे। और जो नीडल्स थे वो मेटल से बनाए हुए थे, मेटल और आइवरी से बनाए हुए थे नीडल्स, सुई जिसको बोलते हैं, वो भी पाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और ऐसे बोला जाता है और माना जाता है कि वो लोग स्टिच्ड क्लोथ्स मतलब स्टिच किए हुए क्लोथ्स पहनते थे, और ऑलमोस्ट उस टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब ज़्यादातर लोग अनस्टिच्ड क्लोथ्स ही पहनते थे, मतलब जिसमें धागे नहीं लिए होते हैं वो वाले। सो स्टूडेंट्स, उस टाइम में जो लेडीज़ थी और जो जेंट्स थे वो लोग सब ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी, नेकलेस, रिंग इन फिंगर, हैंड ब्रेसलेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पहनते थे वुमेन और मैन दोनों। तो वुमेन्स ज्वेलरीज पहनते थे, बैंगल्स और इयररिंग्स, वेस्ट बेल्ट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और ये सब के सब गोल्ड, सिल्वर या फिर बहुत जो प्रीशियस स्टोन्स के बनते थे, मतलब चांदी या सोने का या फिर जो डायमंड्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उससे बने हुए थे। People of Indus Valley civilization made utensils of earthenware, cotton, bronze, etc. These included utensils like mug, bowl, earthen mug, metallic pot, saucer, casserole, etc. People of Indus Valley civilization made special type of toys for their children, which included bird-shaped whistles, rattlers, carriages, carts, marbles, toys in the shape of birds, animals, and men and women. In a way, creativity and artistry of these people is expressed in these toys. Toys like head-shaking animals and monkey climbing tree were seen here. सो स्टूडेंट्स, जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो लोग यूटेंसिल्स मतलब जो कोई टाइप के बर्तन, मटेरियल्स, वो सब चीज़ें भी बनाते थे। वो किससे बनते थे? कॉपर या ब्रॉन्ज से बनते थे। और ये सारे यूटेंसिल्स कभी कभी मग से, बाउल से और मेटेलिक पॉट से भी बने हुए थे।
और उस टाइम के जो लोग थे वहाँ के, वो लोग स्पेशल टाइप के टॉयज़ बनाते थे, खिलौने अपने बच्चों के लिए। कभी बर्ड शेप के विसल्स बनाते थे, सीटियाँ या कार्टेजेस बनाते थे, मार्बल्स बनाते थे, या फिर वो लोग टॉयज़ बनाते थे बर्ड शेप के या एनिमल शेप के या मैन और वुमेन शेप के। तो उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। वो लोग की जो हैबिट्स थी उसमें क्रिएटिविटी थी कि वो लोग टॉयज़ के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। कि हेड शेकिंग एनिमल्स, मतलब सिर हिलाते हुए एनिमल जैसे टॉयज़, या फिर मंकी क्लाइंब कर रहे हैं ट्री, वैसे टाइप के टॉयज़ भी वो लोग बनाते थे। एंड उस टाइम में इतने क्रिएटिव होना मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, राइट स्टूडेंट्स। सी आप पिक्चर में देख सकते हो, अभी ये पिक्चर है, आप देख सकते हो अभी पिक्चर, ये पिक्चर है स्टूडेंट्स। सी कितना क्यूट पिक्चर है, ये टॉयज़ है, राइट। ऐसे टॉयज़ उस टाइम में बनाए गए हैं एक्चुअली, राइट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल मतलब जो मर जाते हैं उसके बाद जो अंतिम संस्कार होता है वो सबको फ्यूनरल बोलते हैं, ओके। FUNERAL, फ्यूनरल। We get information regarding religious life of Harappan civilization from the idols or postures. Among the idols excavated, the idol of Matraka Devi has been found. Historians consider it the symbol of Mother Earth. It means people of Harappan civilization must have been worshipping Mother Earth, especially as it gives grains, food and water. Besides this, they might have been worshipping trees, animals, Navdevta, swastik, etc. Remains of worshipping fire have been found from Lothal and Kalibangan. People of Harappan civilization might have been burning dead people. Also, evidences of Agni Sanskar have been found at many places. They buried dead people and also kept some of the things with the dead body. It tells us about their imagination that there is life after death. सो स्टूडेंट्स, रिलीजियस एंड लाइफ फ्यूनरल की बात हम लोग अब करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के से, उसके आइडल्स और उसके पोस्चर्स के थ्रू जो निशानी रह चुकी है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक आइडल मिला है हमें, वो है मातृका देवी का एक पोस्चर मिला, वहाँ पे फाउंड किया गया है, जिससे ये बोल सकते हैं कि वो एक सिंबल है मदर अर्थ का, जो हमारा अर्थ है उसका सिंबल है। और उस टाइम में लोग मदर अर्थ की पूजा करते थे, क्योंकि वो ग्रेन्स देते थे, मतलब फूड खाना देते थे, पानी देते थे, इसलिए वो लोग उनकी पूजा करते थे। और एज वेल एज वो लोग ट्री और एनिमल्स की भी पूजा करते थे, और नाग देवता और स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। ये भी मतलब वो जो चीज़ों में उनको प्राप्त मिला है, उनको जो चीज़ें मिली है, वो सब चीज़ों की वो पूजा करते थे। वैसे देखें तो वो लोग फायर की भी पूजा करने लगे थे। जब ये चीज़ कहाँ पे पता चला, लोथल और कालीबगान में ये चीज़ पता चला कि यहाँ पे लोथल और कालीबगान में फायर की भी पूजा की जाती है स्टूडेंट्स। तो इससे और एक चीज़ हमें पता चलता है कि जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो लोग डेड पीपल को जलाते थे, बर्न करते थे। और उनको ऐसे भी प्लेसेस बहुत जगह पे मिली है, एविडेंसेस है कि अग्नि संस्कार किए गए हैं वहाँ पे, जो डेड बॉडीज़ वहाँ पे बर्न करते हैं। और जो डेड बॉडीज़ जब बर्न करते हैं, उनके साथ उनकी कोई चीज़, उनकी बॉडी के साथ कुछ चीज़ उनके साथ रख देते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। एंड आफ्टर दैट उनकी ये मानना है, उनका ये विश्वास है, उनकी एक इमेजिनेशन है दैट कि लाइफ मतलब मरने के बाद भी एक लाइफ है, देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद भी एक लाइफ है वहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, so this were about the religious life and funeral. Now we will discuss about the script and culture, language. Coins, seals, copper plates have been found from remains of Harappan civilization.
over which some text is transcribed, which is written in some unresolved mysterious language. Although these writings are short words with mantras and joined words are found, lot of attempts have been found to decipher this script, but it has not been successful yet. So students, script and language. इसमें ऐसे बोला गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो लोग कॉइन्स और सील्स और कॉपन प्लेट्स होते, उसमें ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई है, बट वो लैंग्वेज कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तक भी वो चीज़ क्या है और क्या लिखी हुई है उसका कोई क्लू है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट वर्ड्स में लिखे गए, जैसे कि मंत्रास होते हैं या फिर कोई कोई वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया हो और न्यू वर्ड्स बनाया गया हो, तो वैसी चीज़ें मिली है। बट अभी तक ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए, ऐसे बहुत सारे खोज किए गए, बट अभी तक वो चीज़ नहीं पता चला है कि वो लिखा क्या है, बिकॉज वी डजंट हैव एनी क्लू अबाउट दैट वर्ड्स, दैट्स वाई स्टूडेंट्स। ओके, now we will see places of Harappan civilization in Gujarat. Small and big colonies of Harappan civilization have been found in Gujarat, like Rangpur and Lothal in Ahmedabad district, Rosadi, Srinathgarh in Rajkot district, Desalpur in Kutch district, Dholavira, Surkotda, Lakha Bawal in Jamnagar district, Amra, Bhagatalav on the bank of Keem river in Bharuch district. So students, ये जितने भी places के नाम अभी मैंने आपको बोले हैं, ये सारे places में हड़प्पन civilization, मतलब गुजरात में जब हड़प्पन civilization था तब ये प्लेसेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन थे, और इसमें स्मॉल और बिग कॉलोनीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन ने बनाई थी, जो गुजरात के ये जगहों में अभी भी है। हमें जाके देख सकते हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, एंड आपको पता चलेगा कि हाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन गुजरात में था स्टूडेंट्स। ओके, नाउ एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब एंड की बात कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गया। The historians believe that Harappan civilization may have ended because of earthquake, flood, epidemic or external invasion. However, for days, historians, the end of it has been the subject of research. तो स्टूडेंट्स, ऐसा बोला जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एंड अर्थक्वेक, फ्लड और कोई एपिडेमिक के थ्रू ही हुआ होगा। मतलब कि हिस्टोरियंस जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट है वो हमें ये बताते हैं कि इनका एंड एक अर्थक्वेक या फ्लड के थ्रू ही हुआ होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट रिसर्च, जब वो रिसर्च करते हैं तो हिस्टोरियंस को एंड में यही पता चलता है कि इसके थ्रू ही अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेंशन के थ्रू ही हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड वो है आवर एंशिएंट टेक्स्ट। सो लेट्स बिगिन। Our ancient texts, Rig Veda and its study. 4 Vedas are there: Rig Veda, Yajur Veda, Sham Veda and Atharva Veda. Rig Veda is our oldest text. It includes 1028 rhymes which are called Shuktas. Rig Veda is a repository of ancient knowledge. It is written in Old Sanskrit or Vedic Sanskrit language. With the help of Rig Veda, we get information about political, social, economic, and religious life of Aryans. Historians, archaeologists study Vedas along with lyrics to know about history. Some of the rhymes of Rig Veda are in dialogue form. There are references of life of common men in Rig Veda. There are references of political institutions like Gana, Sabha and Samiti. Sabha was a smaller institution as compared to Samiti. Head of the state sat in it and discussed important issues of the state and gave justice. The Samiti was an elaborate body that elected the king. Army chief and priest were appointed to assist the king.
One of the work of king was Gaveshna. Gaveshna means war. From Rig Veda we get reference of battles between 10 kings on the bank of Ravi river. So students, our ancient texts. So we are getting to know about the ancient texts. पुराने जो टेक्स्ट बुक्स थे, जैसे अभी हम लोग बोल सकते हैं उसके बारे में. So we all know that we are having a 4 Vedas. Rig Veda, Yajur Veda, Sham Veda and Atharva Veda. Rig Veda is the oldest one. It includes 128 rhymes and उसको सुक्तास बोलते हैं. और ऋग वेदा सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल वेदा है और ये एकदम ओल्ड संस्कृत में लिखा गया है. एंड विद द हेल्प ऑफ ऋग वेदा we get information about the political, social, economic and religious life of Aryas. उस टाइम के आर्यंस के थ्रू हमें पता चलता है. अभी के जो हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट है उनसे कहने से पता चलता है कि वेदास एक बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि वेदास के राइम्स के थ्रू ही हमें पता चलेगा. और इनकी जो राइम्स है वो ऋग वेदा की जो राइम्स है वो एक डायलॉग फॉर्म में भी बोला जाता है. ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है जो कॉमन मैन के बारे में भी ऋग वेदा में बताया गया है कि कॉमन मैन के रिलेटेड क्या क्या होता था. ऐसे देखें तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते थे जिसमें गाना, सभा और समिति होता था. गाना क्या था? स्मॉलर इंस्टीट्यूशन था जो समिति से कंपेयर करते थे, कंपेयरिंग होता था. और हेड ऑफ द स्टेट, जो सबसे हेड था, वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को सॉल्व करते थे और जो लोग को इशू होता था उनको जस्टिस मतलब न्याय लेकर देते थे. और जो समिति थी, समिति एक बॉडी थी किंग का, मतलब किंग जो बोले उसको समिति को पूरा करना था. उसके बाद जो चीफ आर्मी मतलब आर्मी चीफ थे और जो प्रीस्ट मतलब पंडित, वो लोग सारे के सारे किंग को अपॉइंट करते थे, मतलब किंग को गाइड करते थे, किंग की मदद करते थे. और उसमें से जो वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज, सबसे बड़ा काम क्या था किंग का? गवेषणा था. गवेषणा मतलब वॉर. तो ऋग्वेदा में ऐसे बहुत सारे बताए गए हैं बैटल्स हुए हैं जिसमें 10 किंग्स के बैटल्स हुए हैं रवि रिवर के वहाँ पे नज़दीक में एकदम. Rig Veda provides us information about social life of the Aryas. One of the unit of society was family, and family system was patriarchal, and it was also joint family system. Society was not divided into castes and races, so all were equal in the society. There was no discrimination of high and low status. Women had high status in society. Feminism were there, and women were considered as co-workers and their presence in yagna was essential. They could also study. Among them, Apala, Lopamudra, Ghosha, etc. created rituals of Rig Vedas. Girls got married only when they were adults. Mention of worship of nature is found in the Rig Veda. Worshipping of Indra, Varun, Agni, Surya, etc. is mentioned in Rig Veda. There is mention of Usha as the goddesses of morning and Aditi as the goddesses of evening. Cows, horses and bulls have been discussed at many places in Rig Veda. As compared to other animals, horses have been mentioned more times, which indicates importance of patriotism in their lives. It was common among the tribals to fight for animals. Property was mainly decided on the basis of the number of cattle. Animal husbandry was done collectively and agriculture was secondary in the early stages of Rigvedic age. So students, इसमें ये बताया गया है कि ऋग्वेदा जो है उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलता है आर्यंस के थ्रू कि वो लोग उसकी सोसाइटी और उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी होती थी. फैमिली सिस्टम टू सिस्टमेटिकली चलता था और वो लोग उस टाइम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब सबके सब साथ में रहते थे. सोसाइटी कभी भी कोई कास्ट और कोई रिलीजन के बेसिस में डिवाइड नहीं था.
सोसाइटी में सबके सब इक्वल थे, सबके सब एक जैसे ही थे। उस टाइम में कोई हाई कास्ट और कोई लो कास्ट या कोई हाई स्टेटस और कोई लो स्टेटस वाले कोई भी नहीं थे। उस टाइम में वुमेन को सोसाइटी में सबसे हाई स्टेटस दिया गया है और वुमेन के बजाय कोई भी वर्क होता ही नहीं था, बिकॉज वुमेन वेयर द को वर्कर्स एंड उनकी प्रेजेंस यज्ञ वग्न होता था तो उनके प्रेजेंस सबसे इम्पॉर्टेंट था। और उस टाइम की लेडीज़ स्टडी भी करती थी, जैसे कि अपला, लोपामुद्रा एंड घोषा, ऐसे ये सब भी स्टडीज़ करती थी ऋग्वेदा के रिलेटेड। और जब वो एडल्ट हो जाते थे तभी जाके उनकी शादी होती थी। ऐसे बोला जाए तो ऋग्वेदा में बोला गया है कि नेचर, ये जो इन्वायरमेंट है उसकी भी पूजा, वर्शिप मतलब पूजा करते थे। उस टाइम में इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और ऐसे बहुत सारे देवताओं की पूजा की गई है। उसमें से जो मॉर्निंग की देवी है उसको उषा बोला गया है और जो इवनिंग की देवी है उसको अदिति बोला गया है स्टूडेंट्स। और देखें तो ऋग्वेदा में ये भी बताया गया कि उस टाइम में काउज, हॉर्सेस और बुल्स ये सब भी बहुत सारे जगहों में पाए गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। हॉर्सेस हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स, मतलब दूसरे एनिमल्स के बदले हॉर्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। आप लोग को पता ही होगा स्टूडेंट्स कि पहले ज़माने में जो किंग्स होते थे और जो क्वींस होते थे वो लोग हॉर्स में ही राइडिंग करते थे, राइट। हॉर्स वेयर द पार्टनर्स, हॉर्सेस वेयर देयर पार्टनर स्टूडेंट्स। तो इसलिए हॉर्सेस के बारे में ज़्यादातर बताया गया है ऋग्वेदा में भी। और देखें तो एनिमल्स की फ़ाइट होती थी, ट्राइबल्स के बीच में सब चीज़ें शांतिपूर्वक होती थी, प्रॉपर्टी होते थे, डिस्कशन होते थे कैटल्स के रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री होते थे और एग्रीकल्चर भी उस टाइम में करते थे। और ये सब चीज़ें ऋग्वेदा वैदिक एज में हुआ है और ये सब चीज़ें ऋग्वेदा में अभी भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इज़ इट नॉट दैट अमेजिंग दैट वी आर हैविंग अ सो गुड हिस्ट्री अबाउट द वैदिक ऋग्वैदिक एज, मतलब कितने साल पुरानी बात है ये स्टूडेंट्स। इट्स अ ह्यूज टाइम and we are so much proud that we have blessed this type of country that having a very precious history, right students। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इतने सारे हिस्ट्री के रिलेटेड है जानने को आपको मिलेगा कि आप खुद शॉक होंगे कि वाओ, मतलब इट इज़ सो अमेजिंग टू नो अबाउट दिस टाइप ऑफ हिस्ट्री फॉर आवर कंट्री, राइट स्टूडेंट्स। बिकॉज बहुत सालों पहले की ये सब चीज़ें बातें हैं जो मैं अभी आपसे कर रही हूँ स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 3 इज़ नाउ completed, full and final completed students। So this chapter is completed. Now in the next video we would like to start the next chapter. Okay students, so still there, if you have liked my video, so like, share and subscribe my channel students. Okay students, so till there I will see you in the next video. Stay home, stay safe. With the help of this line I would like to pack up. Bye students.